Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be continuing with the newspaper for 2nd of January 2025. So first of all, a network of doctors in Jammu and Kashmir, how they are bringing the golden hour to remote areas. So here we are using technologies like WhatsApp, the platform of WhatsApp to enhance the medical care in such remote regions like Jammu and Kashmir. And we are also we are also reducing the delays in the emergency treatments. So, this becomes basically an example that in emergency cases like heart attacks, strokes, trauma, which require specialized hospitalization, and there are majorly delays in such life-saving treatments for the patients in the remote areas. So, with enhanced coordination among the doctors and the healthcare providers in Jammu and Kashmir, we are persistently challenging the issues. And also, they were able to save 6,000 people via the WhatsApp platform, and doctors from more than 100 hospitals were connected in this initiative. So that is how they're bringing the golden hour to the remote areas. Next, 2024 was India's warmest year since 1901. So average temperature was highest in 2024. Warming trends are basically linked directly with the climate change and also the variabilities in the nature. Specifically, the northwestern and the western India, it experienced intense heat waves. Also, the monsoon was delayed. We also saw in the starting of 2024, there was delay. The snowfall in the northern part of India was also delayed due to the disturbances in the western flow of moisture-laden winds. So this reflects that how on a worldwide scale, the climate change is impacting the monsoon, not only on the regional level, but also the heat waves are intensifying, the frequency of heat waves are intensifying, the marine heat waves are increasing, the winters are becoming smaller and more harsher, the summers are becoming more longer and also more harsher. So it urges for intensified mitigation measures, and it is a reflection that the climate warming trends will be increasing only for 2025 also. So steps should be taken. We are also part of international agreements, and we are also focusing upon adopting more and more renewable sources of energy. Next, botanist K.S. Manilal. His contributions to flora documentation, he was a botanist, पद्म श्री अवार्डी भी हैं. सो स्पेसिफिकली इनका मेजर रोल रहा है वेस्टर्न घाट के रिस्टोरेशन में. सो मॉडर्न साइंटिस्ट एंड बोटानिस्ट सभी को एक्सेसिबिलिटी मिली टू हिज वर्क्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशनल वर्क्स भी किए हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च किया है ऑन मेडिकल प्लांट्स, एंड उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है. सो इंडियन एसोसिएशन फॉर एग्नियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, मल्टीपल नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं, जिसमें के.एस. मनीलाल जी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है. Then next is regarding the immigration debate. So Trump has aligned with the ideology, with the stance of Musk on H-1B visa row, that they need smart people. So three major highlights, we can say that H-1B visa is for the highly skilled workers, for which 72% beneficiaries are Indians, which directly highlights that they are completely going through a legal passage and they are contributing to innovation, research, and development. Also, it highlights that why are we experiencing the brain gain versus brain drain phenomena. So कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन इंडिया. जो डिजिटल डिवाइड है इन इंडियन स्कूल्स,
लिमिटेड एक्सेस है टू कंप्यूटर्स, टू मॉडर्न फैसिलिटीज, एंड क्या हम इंटरनेशनल लेवल्स को मैच कर पा रहे हैं, एंड क्यों ब्रेन ड्रेन होते जा रहा है। तो इंडिया क्या कर सकता है डायस्पोरा को वापस बुलाने के लिए या फिर लोगों को यहीं पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सो स्मार्ट पीपल आर नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन यूएस बट ऑल्सो इन इंडिया। Digital divide. Only 57% of India's school are having working computers, and only 54% are having internet connection in these schools. So सिर्फ 54% इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है स्कूल्स में, जिसमें से बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फॉर ओवर 90% ऑफ द स्कूल्स, बट एडवांस्ड फैसिलिटीज आर लैकिंग हियर। सो ये चैलेंज अराइज होता है ऑफ फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल एजुकेशन स्पेसिफिकली, जो कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को मुश्किल बना देता है इन दी क्लासरूम्स। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी इंडिकेट किया गया है दैट एनरोलमेंट डेटा का जो ट्रैकिंग है थ्रू आधार लिंक्ड आईडीज वो इम्प्रूव हुआ है, एंड जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं इन स्कूल्स, बेटर एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, तो इंक्लूसिव भी हम बना रहे हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो क्वेश्चन डीयू को लेके, कॉलेजेस को लेके भी अराइज हुआ कि क्या हमारे कॉलेजेस पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए इंक्लूसिव हैं, इज इट रियली प्रैक्टिकल फॉर देम टू मूव इन द कैंपसेस। सो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, एंड इंटरनेट कनेक्शन जो कि एक बेसिक कम्युनिटी में आता है फॉर enabling educational equity, so it is also important specifically for the rural and for the underprivileged students. Next, Sultanpur National Park, it is important, Ramsar site है, then also flamingos that are nearly threatened, IUCN status है उनका। स्पीशीज की अगर बात करते हैं फ्लेमिंगो से रिलेटेड, तो दो स्पीशीज आती हैं, दैट इज ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड लेसर फ्लेमिंगो। So greater they are larger, and the lesser are smaller and they are more bright in color. So shallow, saline, alkaline water bodies में ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि लगून है या फिर कोई बड़ा वेटलैंड है, एस्चुरी का फॉर्मेशन हुआ है। डाइट में दे इंक्लूड algae, plankton, small fishes. That is why सुल्तान नेशनल पार्क एक हॉटस्पॉट है, फ्लेमिंगो हेवन है। इसके साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड हैं, डिफरेंट और भी साइट्स पे पाए जाते हैं, जैसे कि रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, एंड नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अंदर, चिलिका लेक इन ओडिशा। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो की जब बात करते हैं, इट इज लीस्ट कंसर्न इन द आईयूसीएन स्टेटस, बट जो लेसर फ्लेमिंगो है, इट इज जिसका ब्राइट कलर ज्यादा होता है एंड स्मॉलर इन साइज होता है, इट इज नियरली थ्रेटेंड। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है इन इंडिया। एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। इट इज अ नेशनल पार्क एंड बेसिकली 200 से ज्यादा स्पीशीज के लिए, माइग्रेटरी स्पेसिफिकली बर्ड की स्पीशीज के लिए होम है, जिसमें माइग्रेटरी स्पीशीज जैसे फ्लेमिंगो, यूरेशियन विजन्स, साइबेरियन क्रेन्स, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बन जाता है। नेक्स्ट, डाउरी, टॉर्चर, domestic violence, they remain a serious worry. So NCW data, domestic violence and dowry, ये हाईलाइट करता है the ongoing concerns with the domestic violence, dowry related torture, harassment, significantly तो नहीं बट slightly decline देखा गया है in complaints in 2024, जिसमें 24% डोमेस्टिक वायलेंस है, 17% इज रिलेटेड टू हरासमेंट एंड डाउरी, एंड सेक्सुअल हरासमेंट इज 4%। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, इन सबके साथ साथ साइबर क्राइम इनेबल्ड हरासमेंट भी बढ़ती जा रही है। ओवर 600 complaints of stalking was registered. More than 200 cases of sexual harassment at the workplaces was registered. Uttar Pradesh accounted for 53% of the complaints, followed by Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh, and also Haryana. So right to live with dignity,
how can we make sure that every woman, every citizen, even male, are having the right, are really experiencing the right to live with dignity? There are high number of dowry related deaths, persistent issues of marital in the marital homes. So is it not highlighting the systematic issues of patriarchy, lack of enforcement? Yeah, फिर also there are legal gaps in the protection which you are providing to the women. So urban, not only in the urban India but also in the rural India, it becomes important कि हम एक integrated approach लेके चलें. NGOs, SHGs, आंगनवाड़ीज के थ्रू हम अवेयरनेस बढ़ाएं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कैंपेनिंग करें एंड उनकी बेसिक राइट्स के बारे में उन्हें अवेयर करवाएं. कार्ब कंट्री, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी रिगार्डिंग द प्रोटीन डेफिशिएंसी इन इंडिया. एंड एक मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोटीन जो है इट इज अ सप्लीमेंट, बट इट इज नॉट, इट इज एन इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद द कार्ब्स. सो ग्रीन रेवोल्यूशन से ही हमने देखा जो इंडिया का डाइट था इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कि राइस या फिर व्हीट. सो प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो कंपैरेटिवली लो रहा है, जबकि अवेयरनेस धीरे धीरे हमने देखा है कि अवेयरनेस का ट्रेंड बढ़ा है. तो ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स जो है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सीरियस issues like insulin resistance, systematic inflammation, higher rate of diabetes. Specifically आज के टाइम पे यंगर पॉपुलेशन भी जो है it is getting affected by diabetes. Also, the share of Indians eating meat is rising. So, along with the general protein intake, यहाँ पे दिखाया जा रहा है among the higher income groups, ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है. बट रूरल इंडिया के अंदर कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, मिलेट का इसके अंदर रोल हो सकता है, जिसमें अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड ट्रेडिशनल फूड के थ्रू हम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं. लो ग्लाइसेमिक फूड जैसे कि मिलेट, लेग्यूम, इनको हम प्रमोट करें. पब्लिक हेल्थ कैंपेनिंग में हम इनको इंक्लूड करें. स्कूल करिकुलम में हम इनकी इंपॉर्टेंस बताएं. पोषण अभियान में भी हम इनको जोड़ें. सो एक अर्जेंट नीड है डाइटरी रिफॉर्म के लिए, जैसा कि WHO ने भी बताया है प्रोटीन इज वेरी इसेंशियल, ना कि सिर्फ सोसाइटल लेवल पे बट ऑल्सो ऑन द इंडिविजुअल लेवल. So next is regarding India's parliamentary proceeding. Why are we saying that there is a sorry state of India's parliamentary proceeding? क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 challenges highlight किए गए हैं. यूजुअली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का रोल क्या होता है? यहाँ पे हम डिबेट, सिविलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन एंड फॉर द कंट्री प्रमोट करते हैं. वेरियस लीडर रहे हैं जैसे कि वाजपेयी जी, नेहरू जी, जिन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होने के बाद भी डेकोरम को मेंटेन किया है. बट रीसेंट ट्रेंड में हमने देखा कि कुछ चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, जैसे कि पर्सनलाइजेशन हो जाना डिस्प्यूट का, एनिमोसिटी का इम्पैक्ट आना. सो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है इन दी सिविलिटी. बाय पार्टीसन डायलॉग जो है वो कम होते जा रहा है. देर आर अब्यूजेस ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स विच आर लीडिंग टू अ डिसफंक्शनल पार्लियामेंट. सो इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी इससे लिंक्ड है ऑफ द एग्जीक्यूटिव. प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है. रिसेंटली भी हमने देखा था लोकसभा एंड राज्यसभा, only 50 to 40% of the proceedings were taking place. No private member bill was even discussed, and only one law was passed. So, reduced hours of work and lack of legislative output, they are undermining the role for which Parliament was set up, the role as a deliberative body. So, citizens, they are viewing the institution as ineffective, or we can say they are losing trust in the democracy as its productivity is getting lower and lower. So polarization नहीं होना चाहिए. There should be focus on policy discussion rather than media attention. There must not be the misuse of the parliamentary rules by both the government also and also by the opposition. So bipartisan dialogue is very important, debate is very important, and parliamentary ethics is important. सो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सो नॉन प्रोडक्टिव डिसरप्शन के लिए क्या हम पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं या फिर हम वार्निंग दे सकते हैं?
इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस को इंश्योर करने में स्पीकर ऑफ द हाउस का इंपॉर्टेंट रोल आएगा, ताकि डायलॉग हो पाए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। एंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक कमिटी भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आउटसाइड द हाउस, जिससे हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर पाए। एंड कैसे ट्रांस सोशल मीडिया का यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी और इन प्रोसीडिंग स्पेसिफिकली इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि डिबेट्स को ब्रॉडकास्ट करने के थ्रू। सो टेक्नोलॉजी का रोल भी हो सकता है जिसमें रियल टाइम परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्टिविटी को आप लाइन पे चला पाए। नेक्स्ट, less than a third of green levy used so far. Delhi Pollution Control Committee informs National Green Tribunal. So less than one third of the environmental compensation fund has been utilized. तो ये दिखाता है कि कैसे इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं एड्रेसिंग द क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज। जो फंडिंग है वही अंडर यूटिलाइज्ड है। Only 32% of the environmental compensation fund was utilized by November 2024. मेजर एक्सपेंडिचर किया गया मॉनिटरिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड, देन लैबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करने में, मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में। बट कंसर्न भी है, देयर इज लैक ऑफ टैंजिबल एनवायरमेंटल आउटकम डिस्पाइट फंड एलोकेशन। सो कैसे हम रिजल्ट्स को मेक श्योर कर सकते हैं? जो फंड्स हैं उनको क्या हम किसी और बेटर जगह पे यूज कर सकते हैं? क्या हम उसको वेस्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? सो क्वेश्चन रेज होते हैं अबाउट द अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल्सो प्रायोरिटीज ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एंड कैसे हम मेक श्योर करें दैट इट इज रिजल्टिंग इन प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। टैंजिबल रिजल्ट हमें प्रायोरिटाइज करने चाहिए, जैसे कि पोल्यूशन में रिडक्शन, इंप्रूवमेंट इन दी एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ऑल्सो क्लीनिंग अप द यमुना, जो कि डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करती है सभी को। Then next, India churn ahead. So higher costs could lead to consolidation of city gas distribution. So CNG की basically यहाँ पे बात हो रही है, and how it is facing competition from diesel in the commercial and heavy vehicle sector. So rising gas की जो cost है, it may lead to consolidation of city gas distribution, जो कि main aim था affordability and accessibility, उसको impact डाल सकता है। उसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, पॉलिसी डिसीजन है ऑफ अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंसी जो कि डोनाल्ड ट्रम्प हेड करेंगे, सो वहां से भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। हायर कॉस्ट जो है, इट मे मेक द नेचुरल गैस लेस कम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूल सोर्सेज, जैसे कि अर्बन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज हैं वो रिलाई करते पीएनजी के ऊपर, दैट इज पाइप्ड नेचुरल गैस। सो कंसोलिडेशन इस सेक्टर के अंदर एक्सपेक्टेड है क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिवनेस भी होते बढ़ते जा रहा है बिटवीन दी सीएनजी एंड दी पीएनजी, तो उनको स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से डाइवर्सिफाई करना जरूरी है दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी आर हैविंग। The next is regarding delimitation by reversing the population control. सो डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड रहता है विद द पॉपुलेशन साइज, एंड चैलेंज पोज करता है कुछ स्टेट्स के लिए विद सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज पोटेंशियली, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो सकता है उसकी वजह से। तो ये एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे कि एक लोअर फर्टिलिटी रेट स्टेट है अगर इन द साउदर्न इंडिया एज कंपेयर टू अ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट, it creates an uneven distribution or in the parliamentary seats. So fertility policies का directly impact आता है आपके गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ डीलिमिटेशन के ऊपर कंसर्न भी जताए गए हैं एंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स के ऊपर भी। सो कहीं ना कहीं इनइक्विटी
इनिक्विटी क्रिएट करता है, जैसे कि रीजन जिसका बेटर डेवलपमेंट है एंड गवर्नेंस है, दे लूज रिप्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू द हायर पॉपुलेशन स्टेट। जैसे कि आंध्र प्रदेश ने सजेस्ट किया था टू इंसेंटिवाइज द फैमिलीज विद मोर चिल्ड्रन टू एड्रेस द पॉपुलेशन डिक्लाइन। एंड साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर भी हाईलाइट किया गया द अनफेयरनेस इन लिंकिंग रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन सोली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। दूसरे कंट्रीज का भी एग्जाम्पल लिया गया, जैसे कि चाइना, वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी ऑल्सो लेड टू डेमोग्राफिक क्राइसिस, जैसे कि डिपेंडेंसी बर्डन इंक्रीज हो गया था, जेंडर रेशियो स्क्यूड हो गया था, ऑल्सो वर्कफोर्स का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया था। सो फील्ड फर्टिलिटी रिवर्सल अटेम्प्ट्स भी देखे गए, जैसे कि जापान और साउथ कोरिया के अंदर भी, बट लिमिटेड सक्सेस उनको मिल पाया इंसेंटिवाइज करने के बाद भी हायर फर्टिलिटी हो। सो जेंडर एंड सोशल इम्पैक्ट कैसे आता है डायरेक्टली ऑन द गवर्नेंस, ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, वो डीलिमिटेशन के थ्रू हमें दिख रहा है यहाँ पे। सो जो इनइक्विटी होती है उसमें हम जेंडर बेसिस पे, सोशल बेसिस पे इनकरेज तो करते हैं वेमेन को टू हैव more children without addressing that there could be even greater social issues. So delimitation जो है it should focus also on factors beyond the population size, जैसे कि education, governance and also development का metrics भी हम make sure कर सकते हैं कि हम approach में add करें। माइग्रेशन और इक्विटेबल पॉलिसीज को भी एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि रीजनल लेवल पे इम्बैलेंस हो जाता है। सो डीलिमिटेशन, हम रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, जैसे जैसे पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 82, जिसमें पीरियोडिक रीएडजस्टमेंट की बात की जाती है ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंडिपेंडेंट बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डीलिमिटेशन एक्ट, पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1954 में, एंड पीटी में इस बार क्वेश्चन भी आया था कि 4 बार डीलिमिटेशन हो चुका है। 2002 में जो डीलिमिटेशन कमीशन था, it froze the number of seats based on the 1971 census, and 2026 में हम वापस से उसको रिवाइव करेंगे। सो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना फॉर इक्वल पॉपुलेशन, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, एंड जोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन करना जरूरी है। बट इसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं जो डेटा है वो आउटडेटेड है, तो डेटा की भी हमें जरूरत है ताकि करंट डेमोग्राफी को हम रिफ्लेक्ट कर पाए। इंपॉर्टेंट कमिटी इसमें बलवंत राय मेहता कमिटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि जो डीलिमिटेशन है इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। एंड कोठारी कमिटी, उन्होंने भी एम्फसाइज किया कि रेगुलर अपडेट होने चाहिए ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। The next is regarding the recent crash of a Jeju Island plane on the Muan airport, which is located in the southernmost part of South Korea. So black box technology को यूज किया जाता है। ब्लैक बॉक्स क्या है? सो ब्लैक बॉक्स फ्लाइट के अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जिसको इंस्टॉल कर दिया जाता है एयरप्लेन के अंदर टू कलेक्ट डेटा, एंड वो एक जो क्रिटिकल डेटा होता है फ्लाइट के बारे में एंड कॉकपिट के अंदर क्या कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बेसिकली स्टोर करता है। ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, आराम से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसको एक्सीडेंट के टाइम पे। तो इसमें दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जो कि आपका स्पीड कितना है एयरप्लेन का, एल्टीट्यूड कितना है, इंजन का परफॉर्मेंस क्या है, उसको स्टोर करता है, जिसको हम FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं। और एक होता है CVR, जिसको हम बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें आपके कन्वर्सेशंस जो आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर पायलट के बीच में हो रही है, वो सारी ही जितनी भी साउंड है उनको बेसिकली रिकॉर्ड करता है। इसके साथ साथ AI का भी इंटीग्रेशन हम देखने लग गए हैं अभी, जो डेटा डाउनलोड किया जाता है उसको फिर एनालाइज हम करते हैं। तो उस एनालिसिस को और स्मूदन करने के लिए हम आज के टाइम पे AI का भी यूज कर रहे हैं। वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, एंड साथ में इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी होता है। सो इसीलिए क्रैश इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए इसेंशियल रोल प्ले करता है ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी।
Then next, youth at the forefront of climate litigation. So it is talking about how a transformative role is being played by the youth-driven legal battles in transforming the climate policy, in evolving the awareness among the citizens. So climate litigation, it emphasizes on the intergenerational equity. It also works on integrating human rights into the environmental sustainability. ग्लोबल एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मोंटाना यूएसए के अंदर, जो कि लैंडमार्क रूलिंग थी, विच अपहेल्ड दैट यूथ राइट्स टू अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड मैंडेट किया कि चेंजेस होना चाहिए इन दी स्टेट एनर्जी पॉलिसीज. देन कनाडा के अंदर भी एक रूलिंग हुई विच in which youth challenged insufficient climate policies under the Canadian Charter of Rights and Freedom. वैसे ही नेदरलैंड एंड कोलंबिया के अंदर में भी हमने देखा कि दे डिमांडेड, they basically Colombia Supreme Court recognized that Amazon rainforest is a legal entity and mandating its protection for the future generation is very crucial. जर्मनी में भी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट पॉलिसीज टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द यूथ. वैसे ही इंडिया के अंदर भी हमने देखा है उसका अपना शेयर रहा है इन द यूथ ड्रिवन क्लाइमेट लिटिगेशन. एनजीटी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि रिधिमा पांडे, उनका भी पेटिशन था बिफोर एनजीटी. उन्होंने भी मेजर्स की बात की गई कि इंटीग्रेट होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को इनटू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स. एक नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए. Creating a carbon budget is important for development projects. So important transformative implication रहे हैं. ग्रेटा थनबर्ग भी हमने देखा, एक्टिव यंग एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बात की कि साइंस बेस्ड पॉलिसीज को इंटीग्रेट करना चाहिए विद ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी. सो बोल्ड एक्शन रहे हैं ऑफ यूथ ऑल्सो टू सिक्योर एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी, एंड कैसे क्लाइमेट चेंज को भी हम साथ में मिटिगेट कर पाएंगे. Next, after 40 years, Bhopal gas tragedy, toxic waste leaves the city. So 300 ton से भी ज्यादा toxic waste था which was stored at the जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो साइट थी for 40 years, and now it is being transported for incineration. So ये जो process है ये इन्वॉल्व करता है हाईली सिक्योर लॉजिस्टिक, साइंटिफिक सुपरविजन है सीपीसीबी का भी एंड एमपीपीसीबी का भी. लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो फियर है, फियर फॉर देयर प्रोटेक्शन लोकल पॉपुलेशन में भी हाईलाइट हुआ है. एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हमने देखा 40 इयर्स, सो व्हाई आफ्टर 40 इयर्स, 40 इयर्स क्यों लग गए हमें इस पूरे प्रोसेस को टेक प्लेस करने में. सो यहाँ पे डिफरेंट रीजन हम बोल सकते हैं कि लिटिगेशन में हमने देखा लिटिगेशन के अंदर हमने देखा कि डिलेज थे. देन जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उन्होंने भी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं ली, अथॉरिटीज के थ्रू डिले देखा गया. एंड जब कोर्ट ने प्रेशर इंक्रीज किया ऑन दी अथॉरिटीज, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये एक्शन लिया जा रहा है. सो कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोर्ट का भी टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी. बट साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर इतना ज्यादा है वेस्ट का, हजार्डस केमिकल्स हैं, तो उनको डिस्पोज करने का मेथड भी प्रॉपर होना चाहिए. सो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि डिस्पोजल फैसिलिटीज, एडिक्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास नहीं है. तो एक प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कैसे आप डिस्पोज करेंगे इतने लार्ज क्वांटिटी में हैवी टॉक्सिक वेस्ट को. स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए. सो लोकल प्रोटेस्ट भी हमें ये दिखाते हैं कि जो इन्वायरमेंट है एंड हेल्थ है लोगों की, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा इसका, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न नहीं उठे होंगे. जो वर्कर हैं उनके, क्या उनके लिए बेसिक
हमने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, वो क्वेश्चन उठता है। एंड साथ ही साथ विक्टिम रिहैबिलिटेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जिसमें हेल्प उनको मिल पाए इस हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करने में। So why 40 years becomes an important question, and the important role of courts in maintaining the accountability of the authorities also. And there must be proper infrastructure ताकि if future में हमें जरूरत पड़े तो इंडिया इतने लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज कर पाए एंड कंटेन कर पाए, ताकि उसका एनवायरमेंटल एंड सॉइल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टाइगर। यहाँ पे हम सिमिलीपाल रिजर्व की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले तो हमारे लिए उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट्स पे, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है 2009 से ही। इसके साथ साथ ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट हमें यहाँ पे मिलता है, जिसको हम साल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि इंडियन पैंगोलिन, इसके साथ हॉर्न्ड, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी होम है। देन नेक्स्ट, excessive nitrates which are found in the groundwater. सो कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहले तो एक्सेसिव नाइट्रेट कंटामिनेशन। तो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो एनपीके हम बोलते हैं, उसका जब एक्सेसिव यूज होता है एंड एक्यूमुलेशन होता है इन दी सॉइल, एंड वो फिर सीप डाउन करता है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एक्सटेंट तक कंटामिनेशन फेस कर रहे हैं। 50% से ज्यादा इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस नाइट्रेट कंटामिनेशन को फेस कर रहे हैं, जबकि सेफ लिमिट जो है फॉर नाइट्रेट प्रेजेंस इन दी वाटर, इट इज 45 mg पर लीटर। तो उससे काफी ज्यादा है। हेल्थ हजार्ड बेसिकली उसमें ये रिजल्ट करता है, इसके साथ साथ कुछ सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि नाइट्रेट, एक्सेसिव नाइट्रेट जो प्रेजेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर में, उसकी वजह से होता है। सो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन रेट भी जो इंडिया में है वो अलार्मिंगली 60% तक पहुंच रहा है। तो इसकी वजह से जो नेचुरल एक्विफायर्स हैं वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं, बट उतने ही फास्टर रेट पे वो रिप्लेनिश हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए लोकल लेवल पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम प्रमोट करें। एंड जो कंटामिनेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम, बहुत सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे जो कि टॉप करते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स जो कि ऑलरेडी सरकार ले भी रही है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल लेवल पे भी वाटर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मॉनिटर करते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को। सो लोकल्स को उसके बारे में जानकारी सबसे पहले तो होनी चाहिए कि क्यों आप अनरेगुलेटेड वे में वाटर एक्सट्रैक्ट करके उसको डायरेक्टली ना पिए, डायरेक्टली कंज्यूम ना करें। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर यूज जो है उसको हमें रेगुलेट करना चाहिए, एंड एक ऑर्गेनिक बेसिकली ऑल्टरनेटिव जो कि एक्सेसिबल भी हो वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें बायो फर्टिलाइजर अडॉप्ट करने की हम बात करते हैं, एंड सॉइल हेल्थ कार्ड हम देते हैं, जिससे कैसे बैलेंस्ड यूज करना है फर्टिलाइजर का वो हम बता पाए फार्मर्स को। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का जो एक्सटेंसिव 60% तक एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि ओवर स्पेसिफिकली सबसे पहले तो मैप किया जाए इन ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज को, एंड फिर वहां पे योजना लेके आई जाए, जैसे कि ऑलरेडी है भी अटल भुजल योजना, जो कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात करती है। सो आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्या हम उसको प्रमोट कर सकते हैं? क्या वो वायबल होगा हमारे लिए? वो एक क्वेश्चन उठता है। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए।
एंड वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी खुद की हेल्थ के लिए, वो उन्हें पता होना चाहिए। इरिगेशन टेक्निक भी जो हम यूज करते हैं, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है। क्या हम उनको यूज नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा वाटर कंजम्पशन कम होए, साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर रन ऑफ होता है एक्सेसिव वाटर जाने की वजह से इन दी फील्ड, उसको भी हम कम कर पाएंगे। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए रिगार्डिंग द कंटामिनेशन इन द ग्राउंड वाटर एंड हेल्थ रिलेटेड जो इम्पैक्ट होता है। Then next, school enrollment is down by over a crore in 2023 to 24. Delhi specific case study है ये। So total enrollment of students ड्रॉप हुआ है बाय वन करोड़। टोटल देखा जाता है 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। सो स्टेट वाइज डिक्लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया टॉप पे बिहार है, देन उत्तर प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। सो उनकी भी बात की जा रही है रिपोर्ट के अंदर। एंड डेटा वैलिडेशन बोला गया तो UDISE+ रिपोर्ट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट, जिसमें बताया कि एक यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज किया गया वाया आधार, ताकि ड्यूप्लीकेशन रिकॉर्ड को भी आप कम कर पाए। तो उसकी वजह से और ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिला, वो भी एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पे जो एनरोलमेंट हमने डाउन देखा है। इसके अलावा कोविड-19 का इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे डिसरप्ट किया पूरे ही कोविड-19 पैंडेमिक ने लर्निंग फैक्टर को, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट बढ़े। इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि पॉवर्टी फेस कर रहे हो फैमिलीज, माइग्रेशन फेस कर रहे हो, या फिर देयर इज लैक ऑफ एक्सेस, बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन क्या मिल पा रहा है रूरल एजुकेशन में, रूरल एरियाज में, तो वो क्वेश्चन उठता है। देन क्या बेसिक एम्यूनिटीज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं स्कूल में, जैसे कि जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, सैनिटेशन प्रोवाइड करना, तो गर्ल्स पर्टिकुलरली वो चैलेंज फेस करती हैं। इसके साथ साथ कुछ जेंडर स्पेसिफिक बैरियर भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं या फिर अर्ली मैरिजेस का चैलेंज भी हो सकता है। सो स्टूडेंट स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे बेसिकली लेके आया गया है ताकि टारगेटेड इंटरवेंशन हम कर पाए। साथ ही साथ शिक्षा स्कीम, पोषण स्कीम, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्या सच में वो उनकी एफिशिएंसी हम बढ़ा पा रहे हैं? समग्र शिक्षा अभियान से हम यूनिवर्सल एक्सेस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं, मिड डे मील हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लगाते हैं स्कीम ताकि गर्ल्स को एजुकेशन, गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसके लिए हम ना कि सिर्फ लड़कियों को बल्कि उनके घर वालों को भी इनकरेज कर पाए। साथ ही साथ नई डिटेंशन पॉलिसी जिसमें हमने देखा कि जो नो डिटेंशन रूल रहता है 5th क्लास से 8th क्लास तक, उसको हटाने की बात की गई। तो क्या उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा सकता है लोगों के ऊपर? जिस घर में जो ऑलरेडी पॉवर्टी माइग्रेशन फेस कर रहा है, अगर उनका बच्चा फेल होते रहेगा इन दी फ्रॉम टिल दी 8th क्लास, तो क्या उनके लिए कोई डिस्करेजमेंट फैक्टर नहीं होगा फॉर ड्रॉप आउट? सो क्या वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इन दी अपकमिंग फ्यूचर? वो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। देन नेक्स्ट, अ टेल ऑफ टू कॉन्सर्ट्स। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि बोला जा रहा है कि किसी भी कंट्रोवर्सी से बिगर है, एक बिगर पिक्चर है। कार्नेटिक म्यूजिक जो कि साउथ इंडियन ट्रेडिशन में चलते आ रहा है बहुत पहले से ही। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है जैसे कि वीणा, फ्लूट, मृदंगम। इसके साथ साथ बोल सकते हैं कि कंटेम्पररी इश्यूज को भी दिखाता है कार्नेटिक म्यूजिक, हमें उन इश्यूज के साथ भी इंटीग्रेट किया है खुद को, एंड कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के साथ डीपली लिंक्ड है, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया का जो कल्चर है एंड रिलीजियस इथॉस है वहां पे। सो ना कि सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि कंटेम्पररी इश्यूज को हर इंसान तक पहुंचाने में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट, द रेस फॉर फाइटर्स
and the IAF, Indian Air Force dilemma. So military modernization, मिलिट्री इंडिजनाइजेशन, इन दोनों ही चीजों के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है, बट फिर भी हमने देखा कि 5th लाख जनरेशन फाइटर्स जो हैं वो इंडिया लैक करता है. देयर आर डिलेज इन न्यू एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, जिसकी वजह से कंसर्न रेज हुए हैं अबाउट द आईएएफ्स एबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी. कंपेयर किया गया है चाइना के साथ, जिसमें हमने देखा कि चाइना हैज डिप्लॉयड मल्टीपल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो J-20 उनका फाइटर जेट है, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ टेक्नोलॉजिकल लीडर अलोंगसाइड यूएस. तो क्या इंडिया सच में एबिलिटी लैक कर रहा है यहाँ पे? तो डिटेल एनालिसिस बेसिकली प्रोवाइड किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी. सो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हुआ है ऑफ J-20 बाय चाइना, एंड फ्यूचर प्लान भी वो बात कर रहे हैं फॉर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट. इसके साथ साथ इंडिया का जो डिपेंडेंसी है ऑन दी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, डिले हो जाते हैं बेसिकली इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि AMCA, दैट इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी डिले हमने देखा, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक चैलेंज क्रिएट हो जाता है. इंजन डेवलपमेंट में डिले हो जाता है, जैसे कि एरो इंजन, जो कि सिंगल मेजर डिपेंडेंसी है इंडिया की. सो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग है ये, जो यूएस और चाइना का एडवांसमेंट है उसमें जो इंडिया के चैलेंजेस हैं, ये कंपैरेटिव अगर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो अलग हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने में ही चैलेंजेस हैं, प्रोडक्शन में ही चैलेंजेस हैं हमारे पास. सो प्रोक्योरमेंट करना, डाइवर्सिफाई करना अपने ऑप्शंस को, डिफरेंट कंट्रीज के साथ बेसिकली टाइज क्रिएट करना, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें टैप करना, साथ में पॉलिसी लेवल पे और कैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हम कम कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसीज क्या अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड कैसे हम उस पूरे प्रोसेस को और ज्यादा स्मूदन बना सकते हैं. तो ना कि सिर्फ नेशनल लेवल, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि चाइना का एग्रेसिव पॉस्चरिंग बढ़ते जा रहा है इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. साथ ही साथ इंडिजिनस लेवल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं डिफेंस डेवलपमेंट की. सो उस पूरे प्रोसेस में क्या प्राइवेट सेक्टर का रोल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे और स्मूदन कर सकते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे. देन नेक्स्ट, 4 UN environmental summits, they fell short in 2024. What happened? सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, एंड ऑल्सो प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए डिफरेंट कंट्रीज हैं, कंसेंसस होना जरूरी है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज इन अर्जेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करने के लिए. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इन चैलेंजेस का, कि क्या कोर चैलेंजेस हैं जो सभी कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं. फिर साथ ही साथ हर नेशन की जो प्रायोरिटी है वो इन बड़े गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए. फिर उसके बाद हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग, उस पूरे ही प्रोसेस को फाइनेंस करने के लिए इंक्लूसिव एग्रीमेंट्स बनाने चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करनी चाहिए बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. डिसएग्रीमेंट देखा जाता है कई बार की इश्यूज के ऊपर, जैसे कि एमिशन रिडक्शन को लेके, बायोडाइवर्सिटी की फंडिंग को लेके, साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स को लेके. सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी दिया गया है, जैसे कि स्पेसिफिक समिट रहते हैं. अजरबैजान में हमने क्लाइमेट से रिलेटेड देखा, सऊदी अरेबिया में लैंड डिग्रेडेशन देखा, फिर कोलंबिया में हमने बायोडाइवर्सिटी देखा, एंड साथ ही साथ साउथ कोरिया में प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हुआ, ग्लोबल एनवायरमेंटल नेगोशिएशन कंडक्ट किए गए. बट उसके बाद भी डिलेड एक्शन रहते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं एफर्ट्स, इनकोहेरेंट, मिसमैच है. साथ ही साथ फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए डिपेंडेंसी है स्मॉल आइलैंड नेशंस की
डेवलपिंग नेशंस की ऑन द डेवलप्ड नेशंस। तो कैसे हम इन डिलेज को कम करें, कैसे एक्शन ओरिएंटेड प्लान को हम बढ़ाएं फॉर द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्लास्टिक रोल, डायलॉग का क्या रोल हो सकता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, एंड स्पेसिफिक सोल्यूशंस को हमें टारगेट करना चाहिए, सक्सेस मॉडल्स को हमें एनालाइज करना चाहिए। साथ ही साथ क्या ये इनएफिशिएंसी नहीं दिखाता है पूरे यूएन फोरम की, कि क्या वहां पे जो इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म हम बना रहे हैं यूएन के थ्रू, इन्फोर्समेंट कहीं ना कहीं वो लैक करता है, एंड पॉलिटिकल विल एंड जो लीडरशिप है उसका अलाइन होना साथ में बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर का भी रोल इसमें देख सकते हैं, उस सेक्टर में भी हम टैप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ डैप सब्सिडी। सो डैप इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। इंश्योर करना कि फर्टिलाइजर अवेलेबल हो फॉर द खारिफ सीजन। सो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है 3,500 रुपीज पर टन सब्सिडी डैप के ऊपर, ताकि एक तो अफोर्डेबिलिटी हम मेंटेन कर पाए, प्राइस सर्जेस को प्रिवेंट करें फार्मर्स के लिए। एंड डैप जो है वो सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर है इंडिया के अंदर यूरिया के बाद। बट साथ ही साथ उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है यहाँ पे। Government planning to ramp up the food testing infrastructure to boost the exports. सो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हाईलाइट किया गया एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएट किया है एक डिटेल्ड गैप असेसमेंट स्टडी ऑन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एक्सपोर्ट्स। सो उस गैप को असेस किया जाएगा जो करंट फूड टेस्टिंग इकोसिस्टम इंडिया के अंदर है, एंड उसके बाद हमें पता चलेगा कि कैसे हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी और इनहेंस कर सकते हैं, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कहाँ पे गैप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सो इसमें आईओटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ट्रेसेबिलिटी मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाएगा ई हेल्थ फीचर्स के साथ, लेबोरेटरी सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। लेबोरेटरीज, एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज का नंबर भी राइज होते जा रहा है, 78 इंडिया के अंदर अभी है, एंड और हम प्लान कर रहे हैं टू सेट अप सच लेबोरेटरीज इन गुजरात, इन हरियाणा एंड इन कर्नाटक ऑल्सो। MRA प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दैट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। सो इन एग्रीमेंट्स के थ्रू कंट्रीज के साथ हम एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन बना सकते हैं कि ये टेस्टिंग स्टैंडर्ड है एंड ये सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस हैं, एंड वो मेक श्योर करें कि वो इंक्लूडेड रहे। सो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, अपने इनिशिएटिव को अलाइन भी कर सकते हैं विद डिफरेंट नेशन जैसे कि यूके, ईयू, यूएई, जहां पे फोकस किया जाए ऑन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो EIC इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। सो कमोडिटी वाइज, रीजन वाइज बेसिकली डीपर लेयर पे एनालिसिस यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को ई हेल्थ फीचर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल को इंटीग्रेट किया जाएगा इन ट्रेसेबिलिटी मॉड्यूल्स के साथ। तो पूरे ही ट्रेड को हम कैसे सीमलेस बनाएं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। देन नेक्स्ट, यूक्रेन halts the transit of Russia's gas into Europe, ends its supply dominance। तो यहाँ से हम देख सकते हैं NORD 2 स्ट्रीम है, NORD 1 स्ट्रीम है, यमाल यूरोप पाइपलाइन है जो कि जाती हैं यूक्रेन से होके एंड पूरे यूरोप में बेसिकली गैस ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो यूक्रेन को भी इससे लॉस हो रहा है ऑफ $1 बिलियन एनुअली, ट्रांजिट फी वो लूज कर रहा है। साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल स्टैंड है इसके ऊपर, रिफ्यूज कर रहा है बेसिकली ट्रांजिट एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। बट
इससे आप ये तो टारगेट कर सकते हैं कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, बट क्या आप इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी पे करेंगे? तो पूरे यूरोप के लिए एक चैलेंज अराइज होगा, क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। रशिया का भी लॉस होगा इसमें $5 बिलियन तक गैस रेवेन्यू के साथ, क्योंकि एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ ईयू विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टेड, जो कि रिलाय करता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर। तो यू को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कतार से उसको लेना पड़ेगा, यूएस से, एंड पाइप्ड गैस नॉर्वे से। सो इसके साथ साथ जो रशियन गैस है उसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि हम भी वहां पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्या इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे ही रीजन के अंदर एक एनर्जी ट्रांजिशन देखा जाएगा। इम्पोर्टेंट नॉर्ड 1, नॉर्ड 2 स्ट्रीम, जो कि कनेक्ट करती है रशिया को जर्मनी से अंडर द बाल्टिक सी। यमाल यूरोप पाइपलाइन, जो कि देख सकते हैं हम यहाँ पे, वो सप्लाई करती है गैस टू टर्की एंड टू दी सदर्न यूरोप पार्ट्स। फिर एक ब्रदरहुड पाइपलाइन भी है विच रन्स थ्रू यूक्रेन, एंड लार्जेस्ट ट्रांजिट रूट है फॉर रशियन गैस टू यूरोप। बट उसके बाद और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया गया एंड नॉर्ड स्ट्रीम का भी उसमें रोल आया। देन नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अप्रूव्ड बाय होम मिनिस्ट्री। सो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं जो कि एम कर रहे हैं टू क्रिएट अ रॉबस्ट फ्रेमवर्क। कैसे पर्सनल डेटा को हम सेफ गार्ड करें। स्पेशल प्रोविजन लाने की बात की जा रही है फॉर माइनर्स एंड सर्टेन एंटिटीज को क्या हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें जो यूजर्स हैं वो डेटा प्रिंसिपल हैं, एंड जो डेटा हैंडलर्स हैं वो फिड्यूशियरीज हैं। सो एजुकेटरी बॉडी बनाई जाएगी इस पूरे डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए। साथ ही साथ पेनल्टीज भी बोला जा रहा है कि जो डेटा ब्रीच होता है उसके लिए जो लोग गिल्टी हैं उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई जाएं। अभी फाइनल नोटिफिकेशन से पहले और डिबेट इसके ऊपर होगी एंड पब्लिक कंसल्टेशन भी किया जाएगा। देन नेक्स्ट, वर्चुअल कंपेनियंस एंड रियल कॉन्सिक्वेंसेस। सो वर्चुअल कंपेनियन में एआई का रोल आता है। कंपेनियन मेंटल हेल्थ में वो कंपेनियन बनते हैं हमारे, जिसमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट अपने घर बैठ के आप अपने कंफर्ट में बिना अपनी आइडेंटिटी दिए उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट साथ ही साथ सेफ गार्ड एडिक्वेटली नहीं अवेलेबल हैं एआई टूल्स के साथ, जैसे कि अनइंटेंडेड इमोशनल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनके साथ। कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमा अराइज होते हैं जब एआई सिस्टम फेल्स टू गिव यू द रिक्वायर्ड और द एथिकल आंसर एंड इट कुड लीड टू हार्म। सो एथिकल गाइडलाइन होना भी जरूरी है इन एआई सिस्टम्स के लिए, ताकि ड्यूटी ऑफ केयर जो उनकी है डेवलपर्स की बेसिकली, वो हार्म ना पहुंचाए दूसरे सिस्टम्स को। मेंटल हेल्थ एआई के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन होना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, एथिकल गाइडलाइन की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी एंड मैंडेटरी सेफगार्ड होने ही चाहिए, जैसे कि डिटेक्ट कर पाए साइंस ऑफ डिस्ट्रेस या सुसाइडल आइडियाज को, ताकि उनको प्रोफेशनल हेल्प मिल पाए। तो ये कुछ रेगुलेटरी सेफगार्ड है जिनका होना जरूरी है। साथ ही साथ डिफरेंट इंटरनेशनल अप्रोचेस को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, बेसिकली डेटा की भी हम बात कर रहे थे, तो वो भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ जो डेटा प्राइवेसी है, यूजर प्रोटेक्शन इंडिया के अंदर, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो कंपेनियन तो एआई है, बट उसका भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हटाने के लिए जरूरी है हमारे लिए कि रेगुलेटरी सेफगार्ड हो हमारे पास। क्या हम एआई में भी एज गेटिंग कर सकते हैं? वो वो भी एक ऑप्शन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, जुडिशियल एफिशिएंसी। सो केस क्लियरेंस एंड जो बैकलॉग्स हैं
over 13 million cases were disposed of as compared to 11 million cases which were filed around across the district courts. Supreme Court also disposed more than 36,000 cases. So पहली बार ऐसा देखा गया कि जो नंबर ऑफ केस डिस्पोजल था इन अ ईयर by the judiciary system in India, by Indian courts, it exceeded the number of new cases that were filed. So एक shift, major shift यहाँ पे देखा गया कि जो long standing issues थे उनको भी address किया गया है, of for example judicial pendency को लेके specifically. So जो citizens को अपनी right मिलती है, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, फाइनेंस हो, क्रिमिनल केसेस हो या बिजनेस रिलेटेड केसेस हो, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है ऑफ द जुडिशरी ऑल्सो, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी का भी है। हम ई फाइलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, वर्चुअल हियरिंग को यूज कर रहे हैं, केस मैनेजमेंट सिस्टम हम लेके आ रहे हैं ताकि और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ पाए। पैंडेमिक के बाद से ही जो टेक्नोलॉजी का यूज है टू एड्रेस स्पेसिफिकली द केस पेंडेंसी प्रॉब्लम, वो हमने बढ़ाया है। देन नेक्स्ट, financial year 25 and the tobacco exports टॉप टू 13,000 करोड़। सो कल हमने म्यांमार की भी बात की थी ओपीएम को लेके, एंड आज हम टोबैको की बात कर रहे हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको आफ्टर ब्राजील। मेजर डेस्टिनेशन जिसमें हम बोल सकते हैं ईयू है, मलेशिया है, सिंगापुर है, एंड ऑल्सो मिडिल ईस्ट इज देयर। सो WHO का भी स्टैंड यही रहा है कि वी शुड प्रिवेंट एन इंक्रीज इन टोबैको कल्टीवेशन, एंड साथ ही साथ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हमें प्रमोट करना चाहिए अगर टोबैको कल्टीवेशन हो रहा है वहां पे। साथ ही साथ कंसर्न भी उठता है टोबैको को लेके, क्योंकि उसका जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है वो हार्मफुल रहता है। सो एथिकल डायलेमा क्रिएट कर देता है वो अथॉरिटीज के लिए भी। हायर रील्ड है, बेटर प्राइसेस हैं इस साल हमने देखा। सो टोबैको एक्सपोर्ट जो इंडिया का है, दे आर प्रोजेक्टेड टू रीच 13,000 करोड़, एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में हमने देखा 11,000 करोड़ था। तो यील्ड और ज्यादा बढ़ने वाला है, एक्सपोर्ट भी और ज्यादा बढ़ने वाला है। इंडिया के अंदर भी देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो जाती हैं। देन डेटा प्रोटेक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली डेटा प्राइवेसी लेजिस्लेशन, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे। बैलेंस करने की बात कर रहे हैं यूजर एम्पावरमेंट को, कैसे हम बैलेंस करेंगे विद द कॉर्पोरेट कंप्लायंस भी हो उसका। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका कैपेसिटी भी इंक्रीज करना चाहिए। तो यही कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि क्लियर टाइमलाइंस को मेंशन करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So thank you so much everyone for joining Answer Kari today. Keep watching and keep learning with us. Thank you.